हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अम्बेश तिवारी शो। और आज नए सीरीज और नए एपिसोड के साथ मैं हूं जयंत पाठी के साथ। एंड जयंत कुमार पाठी इज द सेल्स हेड एट लर्न टुडे। अगर आपने लर्न टुडे नहीं सुना है तो लर्न टुडे आपको देखना चाहिए। एंड ही इज हेडिंग द सेल्स, तो ऑब्वियस है ही इज द समवन हु नीड टू से कि हाउ ही इज देयर। सो जयंत, वेलकम टू अम्बेश तिवारी शो। जी सर, बहुत मजा आया। तो जयंत, मैं चाहूंगा कि आप अपने बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। alright, so okay, this is my elevator pitch. I'm a scientist turned salesman, and as tak I have worked with some 7 different industries, and in any company or any industry that I go, I was tasked with two responsibilities, which is to make rains, which is to on how to generate more leads, on how to generate more sales. I was like on the tip of the spearhead all the time, and yeah, और क्या बताऊँ? That's how I started. But that's what I do, to be honest. I sell stuff. यही मेरा full time काम है. But I started as a scientist, you can say. I did my PhD and all. But pandemic hit. फिर दिक्कत आ गई. So the way PhD normally works is you do 3 years of JRF, which is Junior Research Fellowship, then Senior Research Fellowship, then you do Research Associate, then you get placed in a nice government job, then you complain about the government all your life, chill, take money home, all that. Okay, I want to do that. But so I qualified all the exams and all, did JRF, finished my PhD in 3 years instead of 5. My project exactly ended on March 16, 2020. Then एक हफ्ते में लॉकडाउन हो गया. Then I was chilling by that time, like हाँ सब खत्म हो गया, let's do RA and पैसा कमाते हैं. So you get the stipend is pretty high if you qualify exams and all. So if you do RA, you get like some 60-70K a month, which is like nice, right? So I was like, चलो great, we're done. But फिर lockdown हो गया. Then I called every goddamn university in the country and they're like, boss, we are closed, we're not hiring. अब बंदा करे तो करे क्या, लाइक होता है ना कि नया नया पैसा आ रहा है, देन व्हाट यू बाय मैकबुक, आईफोन, मैक्स आउट क्रेडिट कार्ड्स, ऊपर से स्टूडेंट लोन्स. ठीक है. आई वाज लाइक यार अभी तो बैलेंस नेगेटिव में जा रहा है, अब क्या करें, ये तो गड़बड़ हो गई. ठीक है, ये तो पता ही नहीं था ये होने वाला है. आई वाज लाइक कुछ तो करते हैं. Then I started working with an YouTube channel and we took them to 1 million subscribers. Then I helped करने को तो कुछ था नहीं, कुछ तो करना था ना. So I was like, okay, let's help my fiance start her business online because उसका भी उनका भी स्कूल तब बंद था. So we started her YouTube channel, created a nice revenue model out of it, free content, tuition class, pay करो, join करो. So started like a coaching business there. Then I was like, this marketing thing is nice, let's do this. तो तब तक मेरे को नहीं पता इसको डिजिटल मार्केटिंग करते हैं बोल के. Then I was like, okay, what do I want to do? Then I realized that, cool, let's sell something. So I started selling online and I failed because I realized that just building a website is not enough. इतना गधा था मैं तब. Then I was you like, are talking about, you are talking about 2020, sorry, मतलब 2020 की बात कर रहे all हो. this happened 2020 March to 2020 June. 3 महीने उस टाइम में. की बात है. हाँ तो कुछ तो करना था यार, क्या करें, फिर काम तो है नहीं कुछ करने के लिए, बेरोजगार बैठे हुए हैं. मतलब क्या करने. फिर then I realized, okay, so building a website is not enough. You also need to like market it. You have to have good quality products. ऐसे खराब products नहीं बेच सकते. वो ड्रॉप शिपिंग चल रहा था तब, लाइक कुछ भी बेच रहे थे तब. ठीक है. Then I realized, okay, this is not working. I need to learn marketing. Then I joined Learn Today as DDIP. They had a program. I joined as a student. Then I realized, okay, this is called marketing. ये तो मैं wait कर रखा था. wait, you joined Learn Today as a student. As a student. So they have this program, DDIP, Digital Deepak Internship हाँ, I Program. know, Now I it know that. is so now we are focusing on consultants, but back then it was started. And I joined it. Then I realized, oh, this is marketing, nice. So, but तब तक तो यार फंड सब चले गए थे हाथ से, कुछ था नहीं नया बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, क्या करे. तो आई स्टार्टेड हिटिंग पीपल ऑन कोल्ड ईमेल्स कि भाई डू हैव एन इंटर्नशिप, डू हैव एन इंटर्नशिप, नीड टू लर्न, राइट. So I landed my first gig, which paid me like some 8,000 rupees, which was like
चलो ठीक है, कुछ नहीं तो मतलब जीरो आ रहा था पहले, तो अभी चलो कुछ तो आ रहा है, विच इज गुड, लेट्स डू दैट. देन इन 2020 सितंबर आई गॉट अ वेल एज अ क्लाइंट, नॉट वेल आई वुड से, ठीक ठाक कंपनी थी, 2-3 करोड़ कमा रही थी वो. एंड दे आर लाइक, ओके Jayant, you don't have experience, you don't even have a year of experience, you come join as a content writer, we'll pay you some money. I'm like, okay, let's do that. Then I joined as a content writer, then I realized कि यार इनका तो बहुत खराब है सिस्टम. Then let's work on it. So I optimize their email processes, और कुछ भी पढ़े जा रहे हैं तब बुक्स पढ़े जा रहे हैं, अरे इसको कैसे करें. So this was a e-commerce company. And I had no idea about copywriting. They hired a content writer. They thought that content is copy. अब मेरे को भी नहीं पता था content and copy में difference क्या है, right? Then I started reading. बहुत लोगों को नहीं पता है. And I started reading here and there. I was like, अरे यार अब ये तो गलत हो गई, फिर content writing बोल के मेरे को copywriting का काम किया जा रहा है, which is cool. कुछ ही नहीं था तो चलो कुछ तो कमा रहे हैं, कर लो. I started working and I was like, this is nice. So this company grew. They started ranking on Amazon. They started selling on Shopify. I was like, let's do another e-commerce store. So एक आयुर्वेदिक product का store था, and we did that. They hit 3 CR in revenue. लाइक ये तो मजा आ रहा है यहाँ पे. अच्छा है यहाँ पे. देन पर पैसे ज्यादा नहीं मिल रहे थे, क्योंकि पीपल वहीं पर अटक जाते हैं ना, कि लाइक लोग ये नहीं देखते आप कितना काम करते हो. दे आर लाइक, अरे तुम्हारे पास तो 1 साल का भी एक्सपीरियंस नहीं है. दे डोंट सी आई वर्क 18 आवर्स टू लर्न एंड इम्प्लीमेंट थिंग्स. देन आई वाज लाइक, अच्छा और क्या कर सकते हैं. सो ड्यूरिंग दैट टाइम आई वाज वेरी एक्टिव ऑन द DDIP ग्रुप एंड ऑल. आई वाज लाइक हेल्पिंग एवरीवन आउट. मतलब एक्सपीरियंस तो आ ही रहा था, बस लिंक, अरे भाई ये कॉपी है, ऐसे लिखो, ऐसे लिखो, ये ऐसे करने से रिजल्ट मिलेगा. मेरे को इंटर्नशिप और जॉब ऐसे ही मिली है. तो व्हाट हैपेंड वाज, DD कॉल्ड में कि भाई तुम तो मेरे सपोर्ट टीम से ज़्यादा पहले आंसर दे रहे हो लोगों का. हाँ सर बिल्कुल, आ जाओ ज्वाइन कर लो कंपनी में. तो December 7, 2020 उनने मेरे को हायर करा. दैट वाज ऑन माई बर्थडे, लाइक बेस्ट बर्थडे गिफ्ट एवर. ठीक है, बोला आ जाओ ज्वाइन कर लो कंपनी. ठीक है ज्वाइन करते हैं. फिर ज्वाइन किया एंड आई वाज लाइक डीडी You joined as आई जॉइंड एज अ आई वांट community support. द टर्म वाज डिजिटल मेंटोर. बट काम यही था कि लाइक यू हैंडल थोड़ा सा केओस, बिकॉज मतलब हजार हजार स्टूडेंट्स का बैच हुआ करता था. बाद में पता चला कि यार 1000 स्टूडेंट हैंडल नहीं कर सकते, 200 में टिक टिक के रखते हैं. सो आई वाज हैंडलिंग ऑल द केओस, लाइक जो कर रहा था बेसिकली फ्री में, उसी के पैसे मिलने लग गए. फिर क्या हुआ, वन डे डीडी वाज लाइक, जयंत यू डू वन थिंग, यू स्टार्ट सेलिंग. सर ये तो अलग है, मतलब साइंटिस्ट लोग का बोलोगे सेल्समैन बनो, ऐसे कैसे चलेगा. लाइक करो यार कुछ तो बेचो. ठीक है करते हैं. ये तो करते ही हैं. तो आई स्टार्टेड लर्निंग, स्टार्टेड सेलिंग. और पहले वेबिनार में नॉर्मली वी आर क्लोजिंग एट 20%, आई गॉट 22-23% कन्वर्शन. लाइक चलो अरे ये तो आता है मेरे को, ये तो बढ़िया है. तो तब मेरे को मतलब फुट गया दिमाग ऐसे कि भाई मैंने 3 घंटा ऐसे बकबक करा और लोगों ने पैसा दे दिया. अरे ये क्या हो गया. लाइक दैट, ये क्या हो रहा है. अरे ये अच्छी चीज है, इसको सीखते हैं अच्छे से थोड़ा. एट दैट टाइम फिर डीडी को मैंने ये बोला था कि आई डोंट वांट ए सैलरी, मतलब गट्स देख रहे हो. उनको बोला मैंने, डीडी आई वांट टू वर्क एज अ फ्रीलांसर विथ यू बिकॉज आई वांट टू एक्सपीरियंस द हसल. मतलब बाकी क्लाइंट्स में नहीं छोड़ने थे ना मेरे को, लाइक पैसे ज्यादा कमा रहे, लालच आ गया था दिमाग में. तो अराउंड दैट टाइम आई वाज वर्किंग विद 5 कंपनीज अलोंग विद डीडी. अब काम का प्रेशर बहुत था कि सुबह से 6 बजे से स्टार्ट करो काम, रात के 12 बजे तक. अब बीच में बस लंच करने के लिए उठो, डिनर करने के लिए उठो, ब्रेकफास्ट नहीं किया जाता था. ठीक है, और नहाने धोने के लिए उठो, बस इतना ही काम था. बाकी काम ही किए जा रहे थे, बाल सब सफेद हो गए वहाँ काम कर करके. राइट. देन आई वाज लाइक, अरे ये तो बहुत ज्यादा मेहनत का काम है, कुछ और करते हैं. देन आई वेंट बैक टू कोल्ड ईमेलिंग, स्टार्टेड मेलिंग पीपल. मतलब करने लग गया कि भाई तब एसईओ का थोड़ा क्रेज चल रहा था. ठीक है, बिकॉज कॉपी राइटिंग इट्स लाइक थोड़ा डिफिकल्ट टू मेजर मोस्ट ऑफ द टाइम. राइट. लाइक ठीक है कंटेंट राइटिंग आती है, अच्छे से लिख लेते हैं, लेट स्टार्ट राइटिंग ब्लॉग. सब कुछ 10-15 आर्टिकल लिखे और वो रैंक कर गए. थोड़ा माइक्रो निश वेबसाइट था तो रैंक कर गए. तो मैं वो केस स्टडी दिखा दिखा के सबको बोली कि देखो आप 10 आर्टिकल लिखे, मैं टॉप पे रैंक कर रहा हूँ, फीचर स्निपेट पे आ रहा है. यार तुम्हारे यहाँ पे 10 ब्रोकन लिंक्स भी हैं, चलो मैं फिक्स कर देता हूँ तुम्हारे लिए, कैन आई वर्क विथ यू, ऐसे करके ईमेल भेजता रहा मैं सबको. ठीक है, Indian तो आई place, foreign लैंडेड place? बोथ. और एक बढ़िया सा वेल लैंड हो गया मेरे से. सो इट वाज अ $10 million कंपनी, सास कंपनी. एंड उन्होंने बोला जान तुम 6 आर्टिकल लिखो, हम तुमको 50,000 रुपये देंगे. ये तो बढ़िया है.
तो मस्त है यार, 6 आर्टिकल मतलब हफ्ते में एक लिखना है मेरे को, और 50,000 रुपये आ जाएंगे पॉकेट में। तो मस्त है। फिर वहां पे वो सेल्स वाली टेक्निक थोड़ी सी काम आ गई, कि जैसे बोलते थे वेबिनार में, उसको मैं 1 to 1 में कन्वर्ट कर लिया था। एंड इट वाज अ बिग कंपनी हु कुड अफोर्ड पेइंग दैट मच। आई वाज लाइक ग्रेट, लेट्स स्टार्ट वर्किंग। तो आई स्टार्टेड वर्किंग देयर एंड आई स्टार्टेड वर्किंग विद डीडी। बाकी सब क्लाइंट्स को हटा दिया, तब मतलब इतने सारे क्लाइंट्स के साथ कौन काम करेगा। Then I realized is like was it's always better to work with less clients and get paid more rather than work with a lot of clients and get paid less. तभी मेरा जो एजेंसी वाला ड्रीम था, उससे पहले वो सब चूर फूर हो गया, कि ये नहीं बनाना एजेंसी में मेरे को। लाइक 3 clients चिल नहीं चाहिए और ठीक है। I was working like that. It was around May March April 2021, इतना सब कुछ उतने में हुआ, मार्च एक 2021। एक साल पूरा तो हलचल से पूरा एकदम ऊपर नीचे हो रहा पूरा एक साल। हाँ, 0 to 1 लाख पहुंच गए एक साल में, बट दैट वाज अ गुड थिंग, नाइसली पहुंच गए वहां पे हसल करते करते। फिर क्या हुआ, जब अपना ये लैंड हो गया, तब लगे अब तो पैसे आ रहे हैं, चलो ई कॉमर्स स्टार्ट कर लेते हैं। मतलब था, फेल हो गया था, दिमाग में वो खुजली हो रही थी यार, करते हैं फिर से, अब तो आ गया ना मार्केटिंग, तो वो भी कर लिए। आई स्टार्टेड एन ई कॉमर्स स्टोर एंड आई स्केल्ड इट टू 10 lakhs a month। और फिर पता चला कि यार बिजनेस बिल्ड करने का क्या, कितने कॉन्स होते हैं अपने बिजनेस बिल्ड करने का। ओके, अरे यार, कॉस्ट नहीं अकाउंटिंग होते देखो, हैं। एचआर देखो, स्पेशली ई कॉमर्स में ना, मतलब आई मीन आई लव इट, नो डाउट, इट्स अ ब्यूटीफुल बिजनेस मॉडल। बट यार मैन पावर बड़े होते हैं यार, लेबर आएंगे, फिर उनको दारू ना पिलाओ तो फिर वो बोले काम नहीं करेंगे। और मतलब मैनेजमेंट करो, मार्केटिंग करो, एचआर देखो, मतलब वो फिर अकाउंटिंग देखो यार, वो तो फिर प्रॉफिट लॉस करते करते मेरी जान निकल जाती थी। हालांकि 10 lakhs पे भी अच्छा खासा 10%, 15%, 20% तक का प्रॉफिट आ जाता था, राइट। बट इट वाज लाइक सच ए नाइटमेयर। फिर मैंने बोला ये बिजनेस बिजनेस बिल्ड करना अकेले एक बंदे का बात नहीं है, चलो लेट्स गो बैक टू फ्रीलांसिंग। और देन आई वेंट बैक टू फ्रीलांसिंग। बाय द टाइम आई वाज स्टिल सेलिंग फॉर डीडी, तो डीडी के साथ कॉन्टैक्ट तो बना ही था कि लाइक लेट्स वर्क एज अ फ्रीलांसर ओनली। सो जून के आसपास आई वाज लाइक थोड़ा फेड अप इवन विद फ्रीलांसिंग, कि मेहनत बहुत कर रहा हूँ मैं आजकल। वही सुबह 6 से रात के 12 बजे तक इतना नहीं करना। डीडी को बोला मैंने, डीडी आई वांट टू कम फुल टाइम, भैया ये फ्रीलांसिंग फ्रीलांसिंग नहीं करना है मेरे को, ये बहुत ज्यादा हेडेक हो रहा है। मैंने बोला ठीक है आ जाओ। तब सारे कॉन्ट्रैक्ट फिर तोड़ दिए हमने। एक एक क्लाइंट था, इसका 1 साल तक का कॉन्ट्रैक्ट था, वो वेल वाला जो था 50,000 वाला, दैट एंडेड रिसेंटली इन जून 2022। और फिर क्या हुआ, अरे गिव मी अ मिनट, हाँ, आई जस्ट गेट शिफ्ट माई सेल्फ टू अ डिफरेंट कॉर्नर, क्योंकि चार्ज खत्म। हाँ, तो फिर क्या हुआ, सो डीडी बोले कि यार लाइक, आर वी गोइंग टू कंटिन्यू इट, किसको कट कर सकते हैं? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल काम कर, या डन। सो फिर क्या हुआ, आवाज आ रही है? हाँ, आ रही, आ रही। ओके। हम्म। फिर मैंने डीडी को बोला, डीडी यार एक साथ काम करते हैं ना फुल टाइम, हम्म। तब इतना मेहनत सबके लिए करता हूँ, एंड आई क्लोज फॉर यू, व्हाट्स द थिंग। हम्म। तो हमने वो क्लोज किया। तब तक हमने प्लान कर रखा था कि अच्छा 6 महीने में हम लोग विल लॉन्च समथिंग हाई टिकट एंड लेट्स स्टार्ट डूइंग दैट। और तब से ये जर्नी चालू है। फिर बेचते बेचते आई स्टार्टेड सेलिंग वेल, और डीडी ने बोला कि यार तुम ही मैनेज करो सारे सेल्स, तो कर लिए और क्या। वही है, इतना ही स्टोरी है। ऑसम। सो स्टोरी 2 साल की स्टोरी बहुत फास्ट फॉरवर्ड हो गई। पहले तो अगर आपने पीएचडी कंप्लीट कर लिया, लाइक यू आर डॉक्टर जयंत पाढ़ी, राइट? नो, सबमिटेड माय थीसिस, मतलब मार्च में मेरा काम खत्म हो गया था, आई डिड नॉट राइट माय थीसिस। अभी रिसेंटली पिछले हफ्ते में गए, एक हफ्ते में सारा थीसिस खत्म करके सबमिट करके आ गया मैं। यार जल्दी से दे दो सब कुछ, तो तो उसके अनदर उसके बाद सिक्स से, मंथ हाँ, यू आर गोइंग टू राइट डॉक्टर जयंत पाढ़ी, राइट? हाँ हाँ, वाह। क्या डॉक्टर है यार, मतलब ठीक है। नहीं, ऑब्वियसली अब वहां व्हाट तक इफ। मुझे, वहां तक पहुंचेगा तब फिर लगेगा कि यार क्या ही है, मतलब यहाँ पे। तो हाँ, एक और डिग्री है और क्या। अब तो मतलब डिग्री से मेरे को कोई लगाव नहीं है, कि हाँ कुछ तो लग रहा है, चलो ठीक है, ऐसा है। चलो, तो एक काम करते हैं, थोड़ा सा अब, इसको स्लो प्रोसेस में लेके जाते हैं। तो सॉरी। जब एक्चुअली क्या हो ना, जल्दी 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 आ गया।
मतलब सर लोगों को ये सुनाई दिया होगा कि 2020 में, सर 2020 जब कोविड आया यू गॉट नथिंग, एंड 2022 से यू हैव एवरीथिंग। तो थोड़ा सा स्लो जाएंगे इस ये प्रोसेस आदत है, मतलब वेबिनार में ऐसे ही पिच करते हैं, तो वही बता रहा था तुमको, सॉरी पूरा का पूरा। में। वो पता चल गया, एवरीवन हु इज लिसनिंग टू दिस पॉडकास्ट, वो दे गेट टू नो कि यू आर द सेलर एंड यू नीड टू नो, अच्छा यू नो हाउ टू सेल एक्चुअली। या ओके, सो जब बात करते हैं व्हेन यू गेट इनटू ए, मतलब ट्रेनिंग की बात करें या फिर जब आप सर्च कर रहे थे कि डिजिटल मार्केटिंग में और ये सब चीजें, राइट? तो आपने इंटर्नशिप के लिए मेल्स किए, व्हाट वाज दैट मेल एंड whom you are sending, how you get the emails, कैसे किया आपने? एंड व्हाई यू आर गोइंग फॉर हाँ, इंटर्नशिप जबकि आपका लाइक पीएचडी, यू आर द पीएचडी होल्डर? तो उस समय तो भाई नॉर्मल लोग बोलते हैं नहीं मैं तो जॉब के लिए जाऊंगा, मैं तो इंटर्नशिप नहीं करूंगा। तो व्हाट वाज योर माइंडसेट एट दैट टाइम? मतलब नहीं, टू बी ऑनेस्ट, लाइक आई वाज थिंकिंग इन टर्म्स ऑफ द एम्प्लॉयर्स शूज, कि हाँ ठीक है पीएचडी कर रखी है, लेकिन मैं क्या वैल्यू ऐड करूंगा वहां जाके? ठीक है रिसर्च कर लेंगे, दैट इज द स्किल दैट आई हैव अर्नड, उससे ज्यादा क्या कर लूंगा? सो आई नीडेड टू लर्न डिजिटल मार्केटिंग, दैट्स द थिंग। I had PhD in geology, which is like science. It's like बहुत दूर दूर तक आता नहीं है। साइंटिस्ट को कोई बोलोगे जाके बेचो, वो like they will shit their pants. So that's not how it works, right? So फिर क्या, तो like सीखना तो है। अब मतलब कोर्स वैस तो सीख लिया है, और डीडीआई में लाइव ट्रेनिंग दिखा दी कि ऐसे कर दो, ऐसे ईमेल्स भेज दो, तुमको रिजल्ट मिल जाएंगे। तो मैंने बोला ठीक है ऐसे ही ईमेल्स करेंगे, बट लेट्स लर्न फर्स्ट। तो आई सेंट एन ईमेल टू लाइक सम 100 कंपनी on थोड़ा 100? hyper personal, and by default I kind of did the same thing that people are teaching now. So I was like, अरे ये टेम्पलेट जो हेलो सर मैडम ये सबको ही भेजता रहता है, कौन रिप्लाई करेगा उसका? So I used to send emails like my best converting email was like this: Hey Parul, love your dog Max. Check, found it on Instagram. I would love to pet him someday. By the way, found out that you are a marketing manager in this company. I would love to intern for you. Do you have any openings? Let me know. 4 लाइन का ईमेल इतना अच्छा रिजल्ट देता है ना, क्या बताऊं। तो ओके। डेटा साइंस कंपनी ने मेरे को हायर करा उनके ईमेल्स लिखने के लिए, लाइक भाई लिखते तो बड़े अच्छे हो तुम, आ जाओ लिखो हमारे लिए। तो तब मेरे को नहीं पता था ड्रिप सीक्वेंस क्या है, ये क्या। फिर से यूट्यूब में जाके सर्च करो, अच्छा ऐसे करते हैं ड्रिप सीक्वेंस, और डीडी ने तो सारा डाल दिया है वहाँ पे यूट्यूब चैनल, उन्हीं का देखते रहते थे। ऐसे करो फिर ऐसे करो, हाँ कर लिया। तो लाइक हाँ, तो आती है अपने को मार्केटिंग थोड़ा बहुत, तो उसके बाद ही फुल टाइम जॉब। तो 3 महीने का कुछ इंटर्नशिप, फिर फुल टाइम जॉब लगी गया। हम्म। नाइस नाइस। ऐसे ऐसे वैसे आई नो कि डीडी का जो इंटर्नशिप है दैट इज रियली इम्पैक्टफुल, और जो लोगों को डिजिटल मार्केटिंग नहीं आता उनके लिए तो भाई मस्ट, क्योंकि या वो तो इट वाज ऑसम। सो अब बात करते हैं, चलो जॉब तो लग गया, लाइक 8,000 का जॉब था, उसमें आपको काम था कि कंटेंट और कॉपी वाली, राइट? जो पहला वाला जॉब था। जॉब वाले में अच्छा खासा था। 30,000 दे यूज्ड टू पे, या ओके, पहला 30,000। जो इंटर्नशिप था दैट वाज 8,000। इंटर्नशिप में 8,000 मिल रहा था, फिर हाँ। पहले जॉब में मेरे को 30,000 कुछ मिल रहा था। ओके, जॉब इंटर्नशिप और डायरेक्ट जॉब, मतलब यानी कि जो लोग सीखते ही नहीं उनके लिए प्रॉब्लम है। इफ यू हैव लाइक स्किल्स एंड इफ यू गोइंग टू लर्न, तो आपको सैलरी डबल ट्रिपल हो जाती है। दैट नॉट द इशू। खुद ही सोचो ना कि लाइक ठीक है आपके पास स्किल है, लेकिन आपको दिखाने के लिए कुछ नहीं है आपके हाथ में, तो कोई क्यों कुछ जॉब वॉब देगा आपको? मतलब पीपल केयर अबाउट रिजल्ट्स, लाइक हु केयर्स अबाउट स्किल्स? लाइक सबको चाहिए कि भाई तू मेरे लिए क्या कर सकता है। दैट वाज द थॉट प्रोसेस आई वाज गोइंग, मेरे को कोई क्यों जॉब देगा, भले ही मेरे पास इतना एक्सपीरियंस है तो क्या हो गया। तो अनलेस आई शो देम कि हाँ मैंने ये क्लाइंट के लिए ये करा, मैं तुम्हारे लिए भी ये कर सकता हूँ, they would not even consider me, right? So with that mindset I was like हाँ चलो इंटर्नशिप कर लेते हैं, रिजल्ट्स निकाल लेते हैं, केस स्टडी बन गया तो विल गो फॉर अ जॉब। वही क्या, तो वही तो करते ही हैं। ऑसम। सो उसके बाद से आप जॉब पे चले गए। जॉब वाज लाइक कितना दिन आपने जॉब किया? जॉब तो किया पूरा फुल 1 साल तो किया है उसके बाद। ओके, यू मतलब डिड। 6 मंथ डाउन द लाइन आई चेंज्ड माय जॉब टू कॉन्ट्रैक्टर इंस्टेड ऑफ अ फुल टाइम एम्प्लॉई। कॉन्ट्रैक्टर, द कॉर्पोरेट वर्ल्ड में फ्रीलांसर को कॉन्ट्रैक्टर बोलते हैं, फॉर पीपल हू डोंट नो। So I want to work as a contractor. So you raise your invoice, they get paid.
और 10% TDS काट डालते हैं वो लोग विच इज नॉट अ गुड थिंग, बट चलो गुड इन टर्म्स ऑफ टैक्स रिटर्न वहाँ पे आ जाता है, बट हाँ इन टर्म्स ऑफ कॉर्पोरेट वर्ल्ड इट्स कॉल्ड अ कॉन्ट्रैक्टर. कॉन्ट्रैक्टर. सो आई वुड, हाँ, so I would apply for jobs people who are hiring, but in the interview I'll tell them that boss I want to work with you as a contractor, not as a full-time employee. तो दे So that kind of, मोस्टली दे आर लाइक कि नहीं मुझे फुल टाइम हमारे पास चाहिए, मुझे कॉन्ट्रैक्टर नहीं चाहिए, ऐसा तो क्वेश्चन आता है. व्हाट आर द आंसर? आप ऐसा क्या करते नहीं करना काम ना. थे? ओके, सिंपल. हमें हमें पता है कि क्या करना है ना. Priority चाहिए. अरे भाई ऐसा है कि लाइक आपको पता है, ओके, यूजुअली डिजिटल मार्केटिंग जॉब्स में जैसे यू वर्क फॉर लाइक 4 5 hours, अनलेस इट्स लाइक वेरी एफर्ट हैवी जॉब. आप परफॉर्मेंस मार्केटिंग करो, कॉपी राइटिंग में कितना ही टाइम लगता है. इट्स नॉट अ वेरी एफर्ट हैवी जॉब, इट्स अ रिजल्ट ड्रिवन जॉब. या फिर ब्लॉग्स भी लिखो, इफ आर गुड राइटर इट विल टेक यू एनीवेयर बिटवीन 3 to 4 hours टू ड्राफ्ट आउटलाइन एंड अनदर 3 hours टू राइट एन आर्टिकल, रियली गुड आर्टिकल, like 3,000 4,000 वर्ड का आर्टिकल. सो अबाउट 6 hours इट टेक्स राइट वन आर्टिकल. सो 2 दिन में एक आर्टिकल आप इजीली लिख सकते हो अगर 4 घंटे भी काम करो. तो अगर फुल टाइम जॉब लग गया तो यार दूसरा जॉब अगर ढूंढोगे तब तक देन इट विल बिकम लाइक, इसको छोड़ना पड़ेगा ना फिर. तो बिकम अ कॉन्ट्रैक्टर, वर्क विथ 3 कंपनीज. तो आई वाज लाइक एक कंपनी मेरे को 30,000 दे रही है, दैट वाज इन सितंबर 2020 का मंथ जब मेरे को पहला जॉब लगा. क्यों ना मैं और 3 कंपनीज को हायर कर लूँ, मतलब लैंड कर लूँ, वुड पे मी 30,000 अ मंथ. तो दिसंबर तक 3 क्लाइंट्स आ ही गए थे ऐसे ही. तो दैट वाज इट. ओके. और यू आर डूइंग एज फ्रीलांसिंग गुड, मतलब फ्रीलांसिंग में आप अच्छा काम करते हो, फिर फुल टाइम में क्यों आफ्टर टाइम? फुल टाइम यार मेहनत बहुत लग रही थी और मेरे को डीडी के साथ काम करना बड़ा पसंद आता था. बहुत मजा आता है यहाँ पे काम करना, ट्रस्ट में. अपनी कंपनी में लाइक आई टेल यू अबाउट डीडी मैन, आई एम नॉट ब्रैगिंग एंड नॉट प्रमोटिंग एनीथिंग, बट ही इज अ डिफरेंट ब्रीड ऑफ सीईओस. लाइक आप उनको देखोगे ना, मतलब दिखेगा नहीं कि ये बंदा अमीर है कि इतने इतना कुछ फोड़ रखा है, वही टी शर्ट ट्रैक पैंट पहन के घूमते रहते हैं इधर, राइट. लाइक सो डाउन टू अर्थ. एंड वन एवर वी केम टू बैंगलोर, इनफैक्ट अभी जैसे मैं बैंगलोर, लाइक डीडी इज माई रूममेट हियर, ओके, आई शिफ्टेड नाउ टू बैंगलोर. तो जब बैंगलोर आया तो रहने के लिए घर नहीं था, ठीक है. एंड डीडी वाज लाइक यार रहने के लिए घर नहीं है, ठीक है नहीं इधर क्रैश कर लो हमारे घर में. लाइक कौन कौन सीईओ ऐसा करता है यार. तो आई वाज लाइक यार ऐसा कौन करता है यार. देन आई वाज लाइक ही इज अ गाय आई वुड लव टू वर्क विद. इट्स, और कभी भी कुछ भी जरूरत हुआ ना, लाइक आई हैव सीन हिम, जैसे बैंगलोर में कोई एम्प्लॉय का कोई ब्रदर सिस्टर किसी का कुछ दिक्कत है, वो इधर ही से कार लेके जाएंगे, उसका प्रॉब्लम फिक्स करेंगे. किसी को हॉस्पिटल लेके जाना है, किसी को कहीं लेके जाना है, इफ इट इज अर्जेंट ही विल फिक्स इट एंड कम बैक. आई वाज लाइक इतना केयर कोई अपने एम्प्लॉय के लिए कोई नहीं करेगा. प्लस ही वुड यू नो, this was the first company that I worked with where he will not treat you as a fresher. In fact, I would give him suggestions. Imagine I would give DD suggestions. Like मेरा गुरु है वो and he would still take it seriously. कर देते हैं, चलो देख करके देखते हैं. इतना ओपन माइंड कहीं नहीं मिलेगा मेरे को. लाइक आई वुड, लाइक आई वांट टू वर्क विद दिस गाय. सो दैट्स हाउ लाइक, और कहीं नहीं जाना, इधर ही काम करना है मेरे को. एंड इट्स वेरी रेयर टू फाइंड सच पीपल. ट्रू, ट्रू. अब बात करते हैं कि लाइक समवन वांट्स टू बी ए सेल्स कंसल्टेंट और सेल्स में जॉब में जाना है, तो व्हाट आर द थिंग्स दे नीड टू हैव, मतलब होता मस्ट हैव थिंग्स सेल्समैन के लिए? ये बड़ा, टू बी ऑनेस्ट ब्रो, लाइक प्रथम के साथ मिलने के बाद ना, आई ऑनेस्टली फील मेरे को वो बंदा तो अलग ही लेवल पे भेजता है जाके. यू नो आई एम लाइक अ वेरी बिग इंट्रोवर्ट, तो आई डोंट नो इफ आई एम द राइट पर्सन टू टॉक, बट हाँ चलो 500,000 सेल कर ही लिया तो बता ही देता हूँ क्या कर मैंने क्या क्या मैं वो बताता हूँ. इफ somebody wants to follow that path, great. So the to become a sales consultant, obviously you have to become a salesman. And one thing I realized about salesmen is that good salesmen don't work on salaries. They always want to hustle, which I was doing. The majority of the good sales consultants, they don't take a salary, they take commissions. They don't want to stick to one company. And I tried that. I was at one point I was driving salaries and I was also getting commissions. I was not driven enough. When I was getting only commissions, I was like, मोटिवेशन इतना हाई रहता था कि करना तो है, बेचेंगे नहीं तो खाने नहीं मिलेगा आज घर में. तो इट वाज लाइक दैट, राइट.
So that is how pretty much sales things work, and companies are also comfortable with it. And people who want to become salesman, this is a harsh truth. This is how it works. So ये वो आग की लकीर है, right? This is you have to cross. अब if you want to sell, the first is the drive. This hunger has to be there. Without this hunger, you cannot become a salesman because it's a tough job, right? थोड़ा thick skin भी चाहिए. People, when I send cold email prospecting, also people would reply like "fuck off," like "take me off your list." ऐसे ऐसे करके लिखते रहेंगे. And to handle that kind of negativity and still smile and chill, joke around it takes a little bit of मतलब strength or thick skin. So number two, that needs to be there. But in terms of skill, if I were to say, so I would suggest book भी नहीं इधर मेरे पास. There is a book called Spin Selling. Beautiful book on sales. मतलब उसको रट्टा मार दिया पूरा का पूरा end to end. So this is a book written by Neil Rackham in 1980, and this guy did 35,000 sales calls, and out of this 35,000 sales call and all high ticket, उसको पूरा ब्रेक डाउन किया. कब मैंने क्या क्वेश्चन पूछा और उसका रिजल्ट क्या आया, पूरा ग्राफ प्लॉट प्लॉट करके दिखाता है वो. सो इट्स नॉट लाइक ए बुक, इट्स अ रिसर्च बुक कंप्लीटली. और वो बुक मेरा लाइफ चेंज कर दिया कि ओ ओके ऐसे बात करना है. ओके, आई यूज्ड टू थिंक कि सेल्समैन सिर्फ फीचर्स ही बोले जाते हैं, बेनिफिट्स ही बोले जाते हैं. मुझे पता ही नहीं था सेल्स में क्वेश्चनिंग का भी एक रोल होता है. देन व्हेन आई रेड दैट, आई रियलाइज कि हे आई हैव टू आस्क ग्रेट क्वेश्चंस, right? So asking right questions is a very very important skills, and I think my experience in research helped a bit, because if you are in research, you naturally ask questions. That's what you are trained to do for like 5 years, right? So when you ask the right questions, you can sell very well. But then I realized कि फिर भी sales थोड़ा plateau कर रहा था, तो I came across another skill which is tonality. कैसे बात करना है. What you said matters less than how you say it. Like एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ, हाँ ऐसे बोलते हैं, ठीक है. तो अम्बेश, व्हाट इज योर करंट रेवेन्यू, ठीक है. तो अम्बेश बोलेगा XYZ, बट दिस इज वेरी डायरेक्ट, राइट? इफ यू आस्क अ स्ट्रेंजर, अभी तो बात कर ली है, रैपो बन गया, बट अगर मैं ऐसे ही पूछ देता, कोई स्ट्रेंजर आके लेट्स से कोई डिजिटल मार्केटर आपको पिच करा, वो बोल दे आपका रेवेन्यू बताओ, आप उसको बताओगे कभी रियल रेवेन्यू? नहीं, राइट? बट इफ आई टोन डाउन इट अ लिटिल बिट, अगर बोलूं कि अमेश यार, लुकिंग एट योर बिजनेस मॉडल इन योर वेबसाइट, आई कैन सी सम इम्प्रूवमेंट्स, but I don't know exactly how to formulate a game plan. Could you please share with me your current revenue and the profit split so that we can actually sit and craft a good game plan customized just for you? ठीक है सदा, क्वेश्चन में ही बेनिफिट दिखा डाली मैंने, राइट? सो tonality is like very very important. एंड ट्रस्ट में ऐसे, मतलब मैं अभी जाता हूँ क्लाइंट्स के पास, वो ऐसे बैठते हैं, ठीक है, लाइक दे विल बी लाइक दिस, हाँ जयंत अपना प्राइसिंग बताओ. तो कॉल ऐसे स्टार्ट होती है. कॉल एंड कैसे होती है पता है? लाइक जयंत, यू नो व्हाट, माय किड्स वर टेलिंग लाइक दिस एंड आई वेंट ऑन वेकेशन लाइक दिस, यू आल्सो कम. ऐसे एंड होती है मेरी कॉल. all because of tonality. So how you say is insanely important. That is another thing. और बस यही है, tonality, questioning, and the mindset. Mindset is super important. If you're not hungry enough, it's not going to work. That's how it is. Yeah. So जयंत, आजकल के मतलब बहुत सारे लोग हैं जो लाइक एक 499 का वेबिनार करके, या फिर कोई मतलब 1 महीने में, या फिर 6 महीने में चाह रहे हैं कि बार वो करोड़पति बन जाए, दूसरा डिजिटल दीपक बन जाए. पीपल आर देयर जो डिजिटल नाम के आगे ऐड कर देते हैं. सो आई एम नॉट गोइंग टू से कि स्पेशली लोग डिजिटल लगा के डिजिटल दीपक बनने की कोशिश करें. नो, दिस इज नॉट द थिंग्स. बट एनीवे, लाइक जो लोग इस फील्ड में नए आ रहे हैं, या फिर जो डिजिटल में रहना चाह रहे हैं, what you suggest them, how long it will take, and like कितना उनके पास मतलब होता ना, क्या चीजें उनको होना चाहिए. क्योंकि देखो, वी नो कि एंटरप्रेन्योरशिप या फिर डिजिटल इतना आसान नहीं है, डिजिटल मार्केटिंग इतना आसान नहीं है. इट्स नॉट लाइक कि गए और हो गया. नहीं, ये टाइम लगता है जो भी करो आप. तो व्हाट यू सजेस्ट देम जो आ रहे हैं, बिकॉज यू आर इनटू ट्रेनिंग, आपने बहुत सारे लोगों से बात किया था, यू नो द माइंडसेट, देयर माइंडसेट, तो उनके लिए आप क्या सजेस्ट करोगे? वही है यार, लाइक यू नो व्हाट, आई स्टार्टेड विद द माइंडसेट ऑफ लाइक हाँ पैसा कमाएंगे, अर्न करेंगे, एंड देन it became very difficult when I
saw the world through that mindset. So when I started seeing the world from the opposite angle, it became easy. So it is indeed hard only when you think कि अरे यार मेरे को पैसा कैसे आएगा. But when you see it on the other way, कि बॉस इसको अगर मैंने सक्सेस दिला डाली ना, तो ऐसा केस स्टडी बनेगा, इसके अगले वाला क्लाइंट मेरे को 10x ज़्यादा पैसा देगा. So when you focus on the customer success, you naturally become motivated to work for them, and तब ये नेगेटिविटी नहीं आनी. बट हाँ, ये भी कैविएट है कि हाँ अच्छे क्लाइंट्स के साथ काम करो. एंड इफ यू आर कंप्लीटली स्टार्टिंग एज अ डिजिटल नोमैड और लाइक करियर इन डिजिटल मार्केटिंग कुछ भी करने जा रहे हो, आई वुड नॉट सजेस्ट कि गो बिकम एन एंटरप्रेन्योर राइट ऑफ द बैट. सबको मन करता है क्योंकि ये थोड़ा फैंसी टर्म है, सबको बनना होता है एंटरप्रेन्योर. आई स्टार्टेड विद दैट, फिर मेरे को लगा नहीं यार जॉब ही कर लेते हैं यार, सही है ये. राइट. तो that is there, and not everyone should be an entrepreneur. तो सबसे पहले तो यार प्रायोरिटीज डिसाइड करो क्या चाहिए तुमको लाइफ में. पीस ऑफ माइंड चाहिए, चिल मारना है, पैसा आ रहा है, सब सही चल रहा है, केस स्टडीज बन रहे हैं, वो करना है, या फिर बड़ा बिजनेस स्टार्ट करना है. अब बड़ा बिजनेस स्टार्ट भी करना है तो क्यों करना है. तो दैट नीड्स टू बी फिक्स्ड. तो मैंने डिसाइड कर लिया कि अच्छा महीने में अगर 2 लाख आ रहे हैं पॉकेट में, आई एम चिल, और नहीं चाहिए हेडेक. क्या करोगे लेके. Like, if you can afford a luxurious apartment, and like you can afford a car, your family is happy, you can take your dog out for walk, दिन में you are working 5 to 6 hours a day, and that's it. और क्या चाहिए, क्यों हसल करना है. So that वो मेरा प्रायोरिटी है. सबका नहीं होता है. There are many people who want to become entrepreneurs, but अभी आपको बिजनेस स्टार्ट करने के लिए क्या चाहिए. सबसे पहले you need to identify a problem, but to identify a specific problem you also need to be skilled enough. राइट. वो स्किल होगा तब ना. अभी डॉक्टर हार्ट सर्जन वाली पढ़ाई करेगा तब ना उसको पता चलेगा भाई तेरे हार्ट में दिक्कत है. राइट. तो यू हैव टू स्टार्ट बाय लर्निंग द स्किल. तो उसमें लाइक नो कॉम्प्रोमाइज. सेकेंड इज लाइक यू नीड टू स्टार्ट बिल्डिंग दैट पोर्टफोलियो, भले ही जॉब हो, फ्रीलांसिंग हो, कुछ भी करे. बिकॉज वो पोर्टफोलियो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, बिकॉज नो बडी केयर्स अबाउट कि आपने कितने परसेंटेज लाए, कहाँ से पढ़ रहे हो. लाइक आई नो ए गाय, मतलब मेरा एक वर्डप्रेस डेवलपर है, एंड दैट गाय हैज नॉट इवन कंप्लीटेड ग्रेजुएशन. अभी भी 18 साल का बच्चा है वो. मतलब उसके साथ वियर्डेस्ट कॉन्वर्सेशंस होती है मेरी. लाइक हाँ ब्रो, थैंक यू वेरी मच फॉर ऑप्टिमाइजिंग द सिक्योरिटी. ये हैकर था ना, बड़ा दिक्कत कर रहा था, थैंक यू वेरी मच. और कल का क्या प्लान है. यार मैथ्स का एग्जाम है यार, नहीं करूंगा तो टीचर मारेगी, ऐसे बोलता है वो. I still hire him. He charges like good 50-60,000 to develop a website, right? But that guy doesn't have any qualification. But what he has done is like he has built a plethora of website. 65-66 कुछ उसने बना रखे हैं websites, और सब optimized, security top notch, सब बढ़िया. So I hired this guy for his portfolio, never for his degree or work experience. And nobody will hire anyone for their degree or work experience, or study experience, or whatever. Everybody wants results. So very important skill, portfolio. Third is networking. अब ये एक्सक्यूजेस लाइक आई एम एन इंट्रोवर्ट, आई कांट टॉक, या फिर यार डिजिटल में जा रहे हैं, लोगों से बात करना पड़ेगा, दैट हैज टू गो. बिकॉज आप भले ही कितने ही बड़े दिग्गज क्यों ना हो जाएं, लोगों से मिलोगे नहीं तो फिर कौन देगा काम. राइट. सो बोलते हैं ना, कॉन्टैक्ट्स ब्रिंग कॉन्ट्रैक्ट्स. राइट. दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. सो स्किल, प्रोजेक्ट, नेटवर्किंग. स्किल और प्रोजेक्ट नॉट नेगोशिएबल, नॉन नेगोशिएबल, और नेटवर्किंग तो बिल्कुल ही नहीं. In fact, there are times when, like I tell my people in Alpha Club here is like go above and beyond for your clients. तो instead of sometimes मैं cold outreach करूंगा ना, बैंगलोर में कभी क्लाइंट लैंड करते हैं तो उनको बोलते हैं कि ओके कैन वी मीट ऑन अ कप ऑफ कॉफी टुमारो. कॉफी पे लेके जाओ ना, क्या दिक्कत है. राइट. लाइक व्हाई थिंग्स हैव टू बी डिजिटल. सो दैट्स व्हाट. एंड एक बार कोई क्लाइंट आ गया तो गो अबव एंड बियॉन्ड टू हेल्प दैट क्लाइंट. आई ऑलवेज से दैट, क्योंकि वो एक क्लाइंट 5 और क्लाइंट लेके आएगा. तो वही होता है. अब वो नहीं होगा जब आपको पैसा कमाना है. इफ यू जस्ट वांट टू अर्न मनी, you will focus on earning money, not on delivering the service. But let's say you focus on building a case study by helping this guy get more results. This guy will refer 5 more people कि भाई इस बंदे ने मेरे को रिजल्ट्स दिए हैं, तुमको भी देगा, तो करो. So this is Dan Kennedy का book, Magnetic Market में he keeps telling कि like when you do a very good job, you can ask people for more referrals. So normally people say referrals are not scalable. The only way to scale referrals is by doing a really, really good job.
And how do you do a very good job? By actually having the mindset of helping this guy out. So that's it. Okay. चलो अब इसको क्लोज करने का टाइम आ गया. क्लोज करने समय थोड़ा सा पर्सनल क्वेश्चंस होते हैं. लाइक अभी जयंत इज डूइंग ए जॉब, ठीक है ना, जैसे सेल्स कंसल्टेंट का ही इज अ फुल टाइम जॉब. हाउ द डे लुक लाइक? Oh, okay. So I'm also building my personal brand. As you know, I have a YouTube channel. I also plan to write a book. So I have an email list where I build my audience. Eventually, if I were to tell you, my long-term goal is to start a sales coaching program under the hood of Learn Today and Alpha Club only, right? क्योंकि मेरे को दिख गया कि अच्छे सेल्समैन की बड़ी कमी है. तो eventually write a book, 6 months down the line, maybe start a coaching, then blah blah blah. So उसी हिसाब से उस गोल को सेट करके I start my day. So as soon as I wake up, before brushing my teeth, I write 1,000 word email, जो कि आपको जाता है रात के 2 बजे because you subscribed at night. We'll fix that. We'll fix that. तो सबसे पहले वही करते हैं, फिर ब्रश करते हैं. एंड नाउ डेज आई एम ट्राइंग दिस इंटरमीडिएंट फास्टिंग. तो ब्रेकफास्ट तो नहीं करते. तो दिन में 1 बजे खाना खाना होता है. तो आफ्टर दैट बिकॉज भूख लगती है, फिर खाली बैठे रहोगे तो और भूख लगेगी. आई जस्ट पैक माई बैग्स एंड गो टू द ऑफिस. और कुछ नहीं करना होता है तो फिर भी कुछ ना कुछ कोर्स वोर्स पढ़ लेते हैं, यू बुक कीप बुक पढ़ लेते हैं. लर्निंग. हाँ, फिर 10 बजे से क्लाइंट फुलफिलमेंट स्टार्ट हो जाती है. अभी अपना जो कंसल्टिंग बिजनेस है पिक्सल ट्रैक का, विच वी कॉल अल्फा क्लब. तो वहाँ पे वी डू वन ऑन वन कंसल्टिंग. सो 10 बजे से 12 बजे तक वी हैव जस्ट कंसल्टिंग, नो सेलिंग. 12 बजे से 5 बजे तक आई कीप क्लोजिंग. फिर वो चलता रहता है. कॉल्स बुकड रहते हैं, जाके बेचो बेचो बेचो. एंड फॉर्चुनेटली हर दिन बुक्स नहीं रहते, दिन में 2-3 कॉल्स आ जाते हैं. तो यूजुअली वर्क गेट्स ओवर बाई 2 o'clock, राइट. उसके बाद आके आई हैव अ मील एंड देन आई जस्ट गो टू स्लीप. फिर उठ के थोड़ा गेम वेम खेलते हैं. आई मीन इट्स नॉट दैट हार्ड टू बी ऑनेस्ट. पता तो गिल्ट फील हो रही है, मैं तो काम भी नहीं करता ज़्यादा. 5 ईयर तो वहाँ पे थोड़ा गेम वेम खेलते हैं. रात को अभी थोड़ा काम कर रहा हूँ. अभी एक नया क्लाइंट लैंड हुआ पिक्सल ट्रैक में, बट दैट गाय इज इन यूएस टाइम जोन. और काम बड़ा सिंपल है, जस्ट अपॉइंटमेंट सेटिंग. वही ईमेल्स भेजो, डीएम्स करो, वो तो पता ही है कैसे करना है. तो मेहनत तो लगती नहीं वहाँ पे ज़्यादा. कॉपी मतलब टेम्पलेट्स बना लिए, बस कॉपी पेस्ट करते जाओ इधर उधर. तो वो भी 3-4 घंटे जाती है. फिर मेरी फियांसे, अभी उनके साथ थोड़ी बात होती है. आपके साथ कॉल पे बात करने के, उनके साथ बात करेंगे थोड़ा सा. फिर मम्मी पापा के साथ बात करेंगे, फिर सो जाएंगे. और क्या, मतलब So यही this है, is चिल है लाइफ. I think this is the life you wanted. हाँ मतलब वही, मतलब क्यों मेहनत करना है इतना ज़्यादा. लाइक ठीक है, यू हैव ऑल, as long as everybody is happy, you are not having stress. तो चेहरे पे अच्छी सी स्माइल है, जेन्युइन सी, तो क्या चाहिए और उसके बाद. I want to build this thing big. We'll get there. होगा तो होगा. It's like that. Awesome, awesome. जयंत, सच में बता रहा हूँ, मजा आया बात करके. एंड टू बी फ्रैंक, यू आर रियली जेन्युइन गाय. मतलब बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है. मतलब इवन बीइंग एंटरप्रेन्योर, बीइंग आप एंटरप्रेन्योर हो तो आप ऐसे भी सेल्समैन हो. आपको पता है कि यू आर गोइंग टू सेल द थिंग्स, आपको वो चीज पता हो. Yeah. बट इट्स रियली टफ टू बी हु यू आर. ये टफ है. एंड आई नो यू आर डूइंग इट, एंड यू आर डूइंग इट रियली गुड. Yeah. I honestly speaking, I love my current life. So yeah. Yeah. Chalo, great talking with you. Thank you so much, Jayan, for having us. Sorry, basically, thank you so much, Jayan, for having giving your time to our podcast. And जो भी सुना होगा, बहुत कुछ सुनने जानने को मिला होगा, and सीखने को मिला होगा. Thank you so much. Yeah, man. Thank you very much.